So you never wanted Mr. Narendra Modi in Gujarat? Not I, but at that time the whole Whole of the leadership, BJP. whole of the BJP leadership. आप जैसे लोग अब आपको लगता है कि फिट नहीं बैठते इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में? इसलिए तो 2007 में बीजेपी छोड़ दी। आप चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले का बीजेपी आपने देखा, अडवाणी जी, अटल जी के साथ काम किया, तब हिंदू राष्ट्र वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, या फिर वो दबी जुबान में कहीं ना कहीं उनके अंदर था लेकिन वो निकला बाद में? और ऐसा लगा कि नाउ सोसाइटी इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू द रिलीजियस दिस दैट। क्या नरेंद्र मोदी उनकी परछाई है, अडवाणी जी? अभी तो है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन पास्ट में थे। जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं जो एक बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ वाली बात है। लेट्स से डू बेटर। So do you think that it is destiny or it is karma that whatever happened to Mr. Advani and how the party has treated him after Mr. Modi came to power, is it the karma? Exactly. देश के सबसे वेटरन और पुराने नेताओं में से एक सुरेश मेहता साहब आज हमारे साथ हमारे शो पे हैं। स्वागत करेंगे सर, वी आर प्लीज्ड टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू। इतने साल की ये जर्नी, लगभग 90 साल की आपकी एज। 87 कैसी रही है सर, ये पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही है आपकी? See, my family background was also a political background. My father was socialist. He was also in the movement against the princely state. तो पॉलिटिक्स तो हमारे ब्लड में था, लेकिन इट वाज अ पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल. It was a politics of morality. And totally devoted to the ideas which were touching the conscience. To do something for the society was our moral. और आज जब देखता हूँ everything is reverse. क्या बदला सर? देखिए, we are in democracy. डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना हो, डेमोक्रेसी लेना एक बात है, लेकिन डेमोक्रेसी को अगर सर्वाइव करना हो तो देन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. और ह्यूमन सोसाइटी को कैसे रहना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट इन डेमोक्रेसी ह्यूमन सोसाइटी शुड बी अ ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी एंड नॉट राइट एसर्टेनिंग सोसाइटी. नंबर वन. जी. The principle which I was experiencing in those days was that to how to retain the democracy very idealistically. At that time, our concept was that of the duty based. And nowadays, what I am seeing is to have the right ascertained at any cost. तो अब आप जैसे लोग, अब आपको लगता है कि फिट नहीं बैठते इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में? इसलिए तो 2007 में बीजेपी छोड़ दी. और उसकी प्राइमरीली वजह क्या रही? Not adjusting with the then rulers, changing atmosphere of the politics. और ऐसा लगा कि now society is getting divided into the religious this that. तो लगा कि अब तो ये कभी पहले you joined जनसंघ in 1957 और 57 से 2007 तक 50 साल में आपको कभी नहीं लगा कि नहीं, मैं बताऊं आपको. See, when I joined, it was with the sentiments of अटल जी. और 64 में जब अटल जी आए तो ऑफिशियली जब मैंने ज्वाइन किया जी, तो उस वक्त का सेंटिमेंटल अप्रोच था टुवर्ड्स द नेशन. बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया
समय का तकाजा जैसे जैसे आता गया, जी। मैं कभी आरएसएस से वो नहीं था। आई वॉज नॉट विथ आरएसएस, आई डायरेक्टली जॉइंड जनसंघ। You were never the part of RSS की जो एक्टिविटीज थी, या you were never dictated by them? No. When I was in power, little bit I was accommodating them with whatever facilities or something like that they were. Otherwise, as an official Swayamsevak, I was not there. So my idealistic views were independent and different. So you had to pay for it? Less side is better. लेकिन बात ये हुई कि 2002 was a turning point in my life. From within, It changed you? Then at that time, so from 2002 I was getting details from that. 2-3 इंसिडेंट जो हो गए गुजरात में, Did it move you as a human being? इसने मुझे बहुत हिला दिया. First was I was compelled by the elders to become a chief minister, and I was compelled by Atalji and Pramod Mahajan at that time when Shankar Singh Waghela chapter was there. जी. I knew it fully well that this is a high time, and in this time, if I become a CM, then my life will not be a long life so far as that aspect is concerned. तो मैंने अटल जी को भी बताया था कि मुझे आप कंपल मत कीजिए, क्योंकि then my life as a politician or as a chief minister will be very short. ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों सोचा आपने? उस वक्त की सिचुएशन ही ऐसी थी. तो तब आपको नरेंद्र मोदी की आहट दिखने लग गई थी तब? नहीं, नरेंद्र मोदी के बारे में तो ये हुआ था कि सबको, हम सब गए थे, पूरे गुजरात से सब लोग गए थे, वो 10-12 लोग गए थे, सब एल्डरली गए थे, ऑफिस बेरर्स गए थे, और पार्लियामेंट्री बोर्ड को बताया था कि इसको इधर से ले जाओ भैया. तब देन ही वो शिफ्टेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली. ये कौन से साल की बात है? साल तो एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ये बात हुई थी तब. आपके सीएम बनने से पहले या बाद में? नहीं, पहले बहुत पहले. You never wanted Mr. Narendra Modi in Gujarat? Not I, but at that time the whole of the BJP. Whole of the BJP leadership. And he was Advani ji who insisted. But did you see that coming कि एक नरेंद्र मोदी एरा आएगा और ऐसा एरा होगा? मैं क्या, उस वक्त मुझे जो सुनाई दिया तो संघ में भी ऐसा था. संघ में ही was a प्रचारक and then he was a organization secretary deputed to political field. तो उस वक्त भी संघ वालों को भी you see, they were also not, I know so far as that aspect is concerned, they were also not happy. तो जब आप चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले का बीजेपी आपने देखा, अडवाणी जी, अटल जी के साथ काम किया, तब हिंदू राष्ट्र वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, या फिर वो दबी जुबान में कहीं ना कहीं उनके अंदर था लेकिन वो निकला बाद में? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो अब कैसे लेते हैं वो है. वैसे तो कभी मैं मस्जिद में गया भी नहीं और मस्जिद देखी भी नहीं. और सुबह उठ के तो मैं मेरे भगवान को याद करता हूँ. बात ये नहीं है, बात ये मिस इंटरप्रिटेशन की और सेंटिमेंट्स के इरिटेशन की है. तो अब का इंटरप्रिटेशन, उस वक्त का इंटरप्रिटेशन वो अपनी अपनी जगह पे. लेकिन 2-4 इंसिडेंट जो बने वो उसमें मुझे मजा नहीं आया. तो मैंने तो अटल जी का इंसल्ट हुआ. एक सवाल मेरा है, ऐसा क्या था कि 2002 ने आपको मूव किया, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको टच किया, लेकिन 92 ने नहीं किया? बाबरी ने आपको नहीं
मूव किया, लेकिन आपको 2002 ने किया। I was restricted to Gujarat politics. ये आपकी चॉइस थी या फिर पार्टी लीडरशिप ने कभी आपको नेशनल नहीं, पॉलिटिक्स नहीं। में जाने नहीं दिया? नहीं, मैं गुजरात में अभी डेवलप होने जा रहा था ना, उस वक्त की जो बात है, क्योंकि हम तो ऑपोजिशन में थे। ऑपोजिशन में से ये चिमन भाई के साथ हमारी सरकार बनी, तो 90s में हमारी सरकार बनी और तुरंत चिमन भाई ने फिर वो छोड़ दिया, तो हम तो ऑपोजिशन में आ गए। अब ऑपोजिशन में आके असेंबली में रिटेन करना, आई वॉज डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो उस वक्त में ये हमारे लिए पूरा कंट्री को देखना या गुजरात में अपना पैर जमाना, तो देन आवर चॉइस वाज टू। उसका असर नहीं दिखाई दिया गुजरात में? इतना नहीं था, इतना नहीं। मुस्लिम लोगों का सेंटीमेंट या फिर हिंदू मुस्लिम, चाहे वो तो मुंबई में बाद में दिखाई दिया, पूरे देश के अंदर उसकी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो नजर आया। टेम्परामेंट ऑफ गुजरात इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द होल ऑफ द कंट्री। Not from the whole of the country, but little bit different. You see, Gujarat mind is self-centered more, to be very frank. Sir, how do you see Amit Shah and Narendra Modi's duo as a political analyst? Then कभी आप बीजेपी में थे, इस बात को मैं अलग रख दूं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आप कैसे देखते हैं? Highly ambitious दोनों, और एक अगर गोल तय कर लिया तो उस गोल को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की मानसिकता वाली। फिर सामने कुछ भी हो, ह्यूमैनिटी, लोग, जो मैंने कहा उसमें सब आ गए। ये वापसी कैसे हुई? आपने कहा कि एक टाइम में आप सब लोग गए और नरेंद्र मोदी जी दिल्ली चले गए, फिर बैक टू गुजरात पॉलिटिक्स एंड देन सीएम ऑफ गुजरात। उस वक्त अडवाणी जी वॉज इन चार्ज ऑफ गुजरात, and thanks to Advani ji and because of him this has happened. He imposed upon very profusely to Keshubai, and then apprehension was created that under the leadership of Keshubai next election गुजरात हम जीत नहीं पाएंगे। तो under these circumstances, Keshubai को कहा गया, he was ousted and Narendra Modi was established. तो आपने डेलिबरेटली छोड़ दिया था इस रेस को या पार्टी ने दोबारा आपको चूज नहीं किया? I was the senior most and I told Atal ji that I will not. You see, and what I should say, I was under the total mindset dilemma, because it was what I was feeling that it was our insult of all the MLAs that we are unable to handle the government, and हमारी ऊपर कोई ऊपर से आने जा रहा है। तो जब नरेंद्र मोदी आए तभी मैंने बताया था कि मैं तो ये आई फील दैट इट इज माय इंसल्ट, तो मैं ये छोड़ देना चाहता हूँ। तो फिर राइट अवे क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? इट टुक यू अराउंड 5 years. थैंक्स टू अटल जी ने मुझे बताया कि इस वक्त पार्टी को जरूरत है और रणछोड़ मत बनो। You were man of duty like you said. Yes, अटल जी ने बताया रणछोड़ मत बनो, only these words. तो इसमें बहुत you see ये कैमरे पे कहने जैसा out of all this I couldn't see much of Advani ji in your career's contribution, और जितना आपने अभी तक मुझे बताया, you had different opinions for him than for Atal Bihari Vajpayee ji. I'll not go individually. That is the thing. ये मेरी पास जो हिस्ट्री है, जो इंसिडेंट्स हैं, वो ऐसा है जो कैमरा पे कहने जैसा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। Is it that worse? इतना बुरा है वो? बुरा मानो, कुछ भी मानो, लेकिन it's of no use to now wash this linen clothes. क्या नरेंद्र मोदी उनकी परछाई है अडवाणी जी की? अभी तो है या नहीं मालूम नहीं।
लेकिन पास्ट में थे। जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं जो एक बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ वाली बात है. लेट्स से इट इज बेटर। So do you think that it is destiny or it is karma that whatever happened to Mr. Advani and how the party has treated him after Mr. Modi came to power, is it the karma? Exactly. And are you happy for it? No, that's why I left the party. कभी अटल जी के साथ इस बारे में आपकी डिटेल बहुत में बात चर्चा, हुई? बहुत चर्चा। उनका ओपिनियन क्या था? In real sense, he was a real राष्ट्रभक्त and not practical man. Not practical means to such type of politics. He was a man of different type. But the country has seen both of them growing together. आज अगर अमित शाह नरेंद्र मोदी है तो वो 30 साल तक वाजपेयी जी और अडवाणी जी रहा. That is their greatness because they were genius and giants. लेकिन दो अलग विचारधाराएं पैरेलल कैसे बड़ी हुई और फिर देश आज यहां तक पहुंच गया? वो तो मैं नहीं कहूंगा अभी। कुछ रिग्रेट्स हैं आपको? बिल्कुल नहीं। जितना पब्लिक लाइफ में करना था उतना मैंने किया और जब मुझे लगा कि अब ये करने जैसा नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। चुप रहना भी तो जुल्म है ना। अगर आप इतने साल बाद खामोश रहेंगे तो वो भी तो जुल्म है। वो दैट इज अनफेयर टू द पीपल ऑफ गुजरात एंड टू द पीपल ऑफ कंट्री। मे बी बट यू सी देयर शुड बी अ प्रॉपर एटमॉस्फेयर ऑल्सो। आज मैं देख रहा हूँ गुजरात की प्रजा जो है वो मति ब्रह्म है। और आज जो कुछ भी आप कहोगे तो बिकॉज ऑफ द प्रोपेगेंडास, बिकॉज ऑफ दिस पावर, तो प्रजा के माइंड में नहीं आएगा। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये एक प्रकार की यादवस्थली की स्थिति है और जब प्रजा मति ब्रह्म हो जाती है ना तब ये यादवस्थली को कोई नहीं रोक सकता। हेल्पलेस फील करते हैं इसके लिए आप? नहीं, लेकिन एक फील करता हूँ कि कोई गुजरात की प्रजा को योग्य दिशा सूचन नहीं मिला, इसलिए गुजरात की प्रजा ने एक बड़ी गलती कर दी है। अब मुझे लगता है कि गुजरात की प्रजा को इसकी भूल का अंदाज आता है। अब गलती कितनी गुजरात की प्रजा अपनी सुधार पाती है वो एक अलग बात है, लेकिन रियलाइज तो प्रजा को हुआ है कि दिस इज द मिस्टेक विच वी हैव कमिटेड। ऑल्टरनेट है कोई? अभी तो नहीं दिखाई पड़ता। यस, लेकिन रियल सेंस में अगर डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना हो तो आज ऑल्टरनेटिव का विचार करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली समथिंग विल कम आउट, लेकिन डेमोक्रेसी को सेव करना बहुत जरूरी है। जिस लाइंस पे, आखिरी एक दो सवाल है मेरे, जिस लाइंस पे पूरे भारत में इस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये चर्चा हुई कि अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है और बहुत सारी ऐसी बातें, सिमिलर लाइंस पे क्या गुजरात भी चला है? यस। नियर फ्यूचर में डू यू सी एनी चेंज? बहुत बड़ा बदलाव कोई, नॉट ओनली पॉलिटिकल, जैसे आपने कहा कि जब प्रजा की सोच, क्या सिविल सोसाइटी, क्या सिविक सोसाइटी का चेंज, क्या सोशल स्ट्रक्चर में वो बदलाव, उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप देखिए। गुजरात की यंग जनरेशन जो है ना वो आज बड़े स्ट्रेस में मालूम पड़ती है मुझे, बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। और ये एटमॉस्फेयर जब पूरा चेंज होता है संस्कृति का और ये सब टेक्नोलॉजी आ गई तो गुजरात का युवा जो है वो दिन को एक युवा है और रात को अपने फैमिली का युवा हो जाता है। आजकल जो ये ड्रग वगैरह जो चला है यंगस्टर्स में, वो गुजरात में आज तक ज्यादा बढ़ रहा है। तो दिन का युवा एम्प्लॉयमेंट के लिए तरस रहा हो, वो अपने को शाम तक 200 रुपये चाहिए, वो गुटखा चाहिए, टू व्हीलर चाहिए, वो चाहिए, मोबाइल चाहिए। और रात को जब घर पे जाता है तो उसको मालूम होता है कि मेरी माँ घर कैसे चलाती है।
और हमारा फैमिली को, मेरा पिताजी की आवक क्या है, हमारे फैमिली को माँ कितने तकलीफ से चलाती है, और फिर उसको एम्प्लॉयमेंट का कोई फ्यूचर नहीं दिखाई पड़ता, तब वो टेंशन में आता हुआ यंगस्टर हो जाता है फैमिली का। दूसरे दिन फिर कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ता, अगेन ही इज गोइंग टू दैट, तो शेल में है वो, ही इज इनटू दैट शेल। तो यंगस्टर, और फिर एम्प्लॉयमेंट का कोई चांसेस नहीं दिखाई पड़ता। तो जिस स्टेट को मेहता साहब एंटरप्रेन्योरशिप का स्टेट कहा गया, बिजनेस का स्टेट कहा गया, कितनी अजीब विडंबना है कि उसी स्टेट में फॉर्मर सीएम और सबसे बड़े पॉलिटिशियन ये बोल रहे हैं कि वहां जॉब्स नहीं है, वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इट इज द फैक्ट, टुडे दिस इज द फैक्ट। हाउ डिड यू डील विद इट? जब आप सीएम थे तब ये नहीं था ऐसा? नहीं, उस वक्त तो गुजरात वाज इन अ ब्लूम, यू सी, इट वाज गुजरात हु गेव द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1990, और 91 में लिबरलाइजेशन आने वाला था जी। और वो राज्य जिसको हम बोलते थे लाइसेंस राज, तो वो सब जाने वाला था। तो गुजरात वाज अहेड in industrial policy with a very liberal aspect, and then it started competing Maharashtra, and sometimes Gujarat was number 1. You see, तो उस वक्त की तो बात ही अलग है। तो पोस्ट मोदी जी एरा जो है वो अलग है, प्री मोदी जी एरा जो शंकर सिंह वाघेला, जो मेहता साहब का एरा है, वो अलग है। कोई नाम से नहीं जाता, लेकिन उस वक्त का तो सिचुएशन ही अलग था। एक आखिरी सवाल, डू यू बिलीव दैट 2002 चेंज्ड एवरीथिंग? गुजरात को बदल दिया? दैट हैज टू बी एन ईयर जिसको हम नहीं, इसमें भी देखिए, अब सिर्फ 2002 नहीं, लेकिन मानस बदलने में और बदलाता हुआ मानस को एक्शन में आने के, 2002 was the period when something happened where this whole manas was changed, and high division in the society created, by whom that I don't know. बोलना नहीं चाहते आप? No, I don't know. राम मंदिर जाएंगे आप या गए हैं? गया तो नहीं। डू यू विश टू गो देयर? अभी तो उम्र ही नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और आपकी लंबी उम्र की मनोकामना हम करते हैं। थैंक यू। कीप गाइडिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू।